कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ अ बुक? एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू ऑल कि एक किताब ने, एक बुक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. एंड दिस बुक इज़ द मैजिक. So welcome to my video guys. Namaste everybody. I am Kalyani. In this video I'm gonna tell you all the book which changed my life and it made my life a lot better. So let's dive into the video. So I'll be telling you the story, what happened and how I hands on this book. I started reading this book. So let's get started. Firstly, I'll tell you the backstory of it. After my 12 boards, when my boards were done in February, they got started February last week, and then in March, mid-March, it was my last paper. I don't remember exactly. So after that we had 3-4 months holidays where we chill, we go around, we are just faffing around, we have no time to study, no time to read books, but I love reading books. So what happened, I had a group of friends, and my friend's neighbor was a guy. There was a guy who was living beside my friend's apartment, and he was a very nice guy, and he was a bachelor, and we used to visit his house sometimes. And so हम उसके घर में जाते थे. We used to visit his house frequently, and I used to see कि उसके घर के बाजू में एक बहुत बड़ी अलमारी है, जिसमें अलमारी नहीं बोलते, बुक शेल्फ या और उसके कॉर्नर में एक बहुत बड़ी बुक शेल्फ थी. तो मैं वहाँ से किताबें ले लेती और मैं पढ़ के 1-2 मिनट में दे देती थी. तो आई टुक दिस बुक. दिस इज़ नॉट हिज बुक, दिस इज़ माई बुक बिकॉज आई परचेस्ड इट अगेन. सो मैंने ये बुक ली और मैं पढ़ना चालू की. ये मैंने पढ़ी फर्स्ट ईयर में, अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में. आई रेड दिस बुक इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट साइमल्टेनियसली. और जब फर्स्ट ईयर मेरा आधा हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, उसके बाद मैंने इस पर, ये जो चीज़ है उस पर एक टैटू भी निकलवाया था. इट्स लाइक कांट बी ग्रेटफुल इनफ. इट्स हियर, या कांट बी ग्रेटफुल इनफ. सो इन दिस बुक उन्होंने वही चीज़ बताई है, दैट यू हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर थिंग्स विच आर हैपनिंग इन योर लाइफ. I know humankind is always cribbing on things which we not have in our life. We are always talking things which we want, but are we grateful for the things which we have in our life? कभी शुक्रगुजार है जो चीज़ हमारे लाइफ में है उसके लिए कभी शुक्रगुजार है हम? Question mark. Ask this question to yourself. Are we grateful for things which we have in our lives? और ये मैंने टैटू निकलवाया क्योंकि मैं महसूस कर रही थी कि मेरी चीज़ें हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा बदल रही है. माई लाइफ इज़ बिकमिंग बेटर. एंड इन सेकेंड ईयर इट वॉज लाइक, ओ माई गॉड, माई लाइफ चेंज कम्प्लीटली टू वेरी बेटर वर्जन ऑफ मी. माई लाइफ got much more. I got prosperity, I got a lot of things I got exposure to a lot of people which I never ever thought of. So it's just because कि I started being grateful. तो इस बुक में The Magic, it's written by Rhonda Byrne. In this book, Rhonda is always trying to emphasize on one quality which all human people usually lack in, and the quality is that being grateful for every single thing. You have one thing, but ensure that, analyze this one thing कि दूसरे पर्सन के पास वो चीज़ नहीं है. For example, just a small example, we are having food every day. Are we grateful for the food we consume every day? Just think about the people who are living on the streets. They don't even have basic needs: shelter, house, food, good clothes to wear, and we are always running for the things which we don't have in our life. कभी टाइम लेके आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए भी शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है.
मैं बहुत पागल थी फर्स्ट ईयर में। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ग्रेटफुल मानती हूँ और अभी भी वैसे है। तो एक चीज़ बताती हूँ, मैं अपनी फर्स्ट ईयर में कॉलेज जब हुआ था 18+ होता है तो तुमको लोगों को लाइसेंस भी मिल जाता है। ओके, लाइसेंस मिल जाता है तो तुम अपनी व्हीकल कॉलेज में ले जा सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ माइन आई स्टार्टेड टेकिंग माई व्हीकल टू माई कॉलेज. I was riding my vehicle and every time I was like, thank you God for giving me hands so that I can drive. People are there on the earth who don't even have hands. I was grateful for the beautiful body which I have got, for the eyes which are helping me to see the world. I can see the beautiful colors, different colors just by my eyes. I have hands. और कभी मैं पेट्रोल पंप पे जाऊँ, वहाँ पे भी मैं थैंक यू बोल देती हूँ जो भैया आपके गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं भरवाते तो एक टाइम आएगा कि आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, कहाँ जा रहे हो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो क्या करोगे? धक्का लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए वो इंसान भर रहा है ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, आपको धक्का ना लगाना पड़े। सो बी थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग। आई नो people might think that I'm an idiot or something, but I am very grateful for all the people who have done whatever things in my life. It doesn't matter अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं, अगर इंसान कोई मेरी लाइफ में बुरा भी कर रहा है मेरे साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है, तो आई एम स्टिल ग्रेटफुल बिकॉज फ्रॉम दिस आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम गेटिंग अ लेसन। मैं कभी कभी रो देती हूँ। हमेशा हमारे लाइफ में कभी कभी चीज़ें होती है जो आपके अनुसार नहीं चलती है तो आप रो पड़ते हो। मैं रोते रोते वक्त भी हमेशा भगवान से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होती हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से जा रही हूँ। आई नो कि ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, मुझे ये बहुत मतलब मेरे को नहीं अच्छा फील हो रहा, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, मैं रो पड़ रही हूँ उस चीज़ के लिए। आई गेट इट, बट दैट्स मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। लाइफ में आगे ऐसा नहीं होगा। अभी मैं रो रही हूँ, अभी मैं बहुत सिंपल हूँ, अभी उसने मेरा फ़ायदा उठाया है, मेरे फीलिंग्स के साथ प्ले करा है, खेला हुआ है, इट्स ओके। बट लेटर ऑन इन फ्यूचर लाइफ दैट्स गोना हेल्प मी ओनली, नो। I'll become more stronger, I'll become more aware of how people are, how their intentions are towards me. There are a lot of people in our lives which are gonna come and give you a lesson or give you a memory or will be a beautiful moment in your life. But I'll be aware कि भाई थोड़ा aware रहना है, किसी के साथ इतना भी नहीं जुड़ना है कि वो प्रॉब्लम में डाल दे। So let's get back to the topic. So being grateful for everything and slowly your life will also change to better. एक दिन, are you the person who wears spectacles every day? If yes, then this example is for you. एक दिन ऐसा करो या 1 घंटा ऐसा करो कि आपका स्पेक्स जो है आपके साथ 1 घंटा मत पहनो। फिर आपको उसकी अहमियत भी पता चलेगी कि स्पेक्टैकल्स भी कितने इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं स्पेक्टैकल्स, एवरीथिंग। अपने आप को प्रायोरिटाइज करो। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि आई एम गोना बी मेकिंग श्योर दैट आई फोकस ऑन माई सेल्फ rather than on everybody. I'm gonna make sure that I love myself, I make myself happy rather than other people. So that's what the things, being grateful is like focusing on yourself and being aware of things which are there in your life, and you're grateful for everything which you have got in your life, and that's gonna change your life completely to good. I hope you like this video, guys. Let's meet in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो बुक है सच में पढ़ना। एंड और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी। सो एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गई कि ये मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। एक चीज़ के लिए आप कितना पढ़ोगे? ये मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ आधी पढ़ी होगी क्योंकि हर एक लाइन में इसने बताया ग्रेटफुल। हाँ, मेरा एक इसमें टेक अवे था कि मुझे ग्रेटफुल होना है हर एक चीज़ के लिए जो मेरे लाइफ में है, पर पूरी बुक उसमें इतनी
वही चीज़ बताइए। तो मैं बहुत इरिटेट होकर मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है पूरी, पर इससे आपको भी टेक अवे लेना चाहिए। और अगर पसंद है आपको ये, अगर कंटेंट पसंद होगा तो डू रीड इट। अगर आपने पढ़ी होगी तो भी बता देना वैसे। हाँ, and yeah, that's all for the video. I hope you like it, and here's your takeaway: to be grateful for everything you have in your life, every single thing in your life. Let's meet in the next video, guys. Lots of love. Keep loving yourself and be happy.